Good afternoon, friends. Welcome on this very interesting webinar on your life, how to make it meaningful and successful. We have a list of dignitaries with us, starting from our own CASA Kochar sir, Apex President JCF. We have Pradeep Kapadia sir, President Mumbai. We have a TC Bafna sir, President Navi Mumbai. We have our own PA Prafula Chhajer sir, immediate past President ICI, and also Chair Executive Committee, World Congress of Accountants 2022. We have a CA Mahavir Chanodia sir from Pune, our own Punit Bhai, Treasurer JCF, our committee member Mukesh Bhai. We welcome all. We welcome our today's guest speaker, SC Jain sir. Our request sir is accepted immediately. SC Jain sir, that is IRS 1982 batch. We welcome you sir. We welcome all. Thank you sir. So now would like to request Pradeep Kapadia sir. Sir is from the back side of the camera for welcome address. Behind the curtains. Yes, sir. Good afternoon and Jai Jinendra to all my brothers and sisters. First of all, let me wish everyone a happy Guru Purnima, and to our TC Bafna sir for happy birthday. Many happy returns of the day, Bafna sir. We are extremely and it gives great pleasure in welcoming you all to this webinar, which is, I think, basically we have been doing webinars mostly on seminars on relating to education and all the lifestyle. Now we have come to something different. That is the fundamental rules for leading a successful and meaningful life. I think that is a must for all our chartered accountants, because we are, I don't know, we all are running, but we don't know where we are running. So that's a thing where if we come to know all these fundamental rules of leading a successful, a meaningful life, I would say more than a successful life. If you have lead a meaningful life, automatically the success will follow. That is what is my say. And for that, we have a very learned speakers with us, Shri Advocate H.C. Bafna sir. I think we have been so fortunate to have this two of the speakers within a span of 1 week. We had Advocate Jain Saab also, and our own immediate past president of our Institute of Chartered Accountant, Prafulaji Chhajer. Both of them, one Jain Saab had come for our settlement commission, lecture on settlement commission and Vivad to Viswas scheme. And Prafulaji had come for our lecture, our conference basically for adversity to advantage during this COVID period, post-COVID period. And they had been, everyone is aware that what a fantastic way of presenting the things that they have done. And see, more important was when Advocate H.C. Jain Saab was delivering his speech on this thing, but we could see his spiritual background also and his spirituality knowledge about it. So we thought that yes, he is the person who can be on our webinar and can speak on the rules of leading a meaningful and successful life. For that, so I really welcome. And Prafulaji Chhajer, I think what we have no words to express about Prafulaji, because उनके लिए शब्द काफी नहीं है, वो शब्दों में कभी समा ही नहीं पाने वाले हैं, तो इनके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा. हाँ, बस उनके बस हम सुन के हम अपने आप को तृप्त कर ले. That is what I would wish, and we would wait for them. And I would request now to navigate the proceedings further, and again wish you all a happy Guru Purnima, and we seek blessings from all our Gurudev also, and from all our senior brothers and sisters. Thank you very much. Now Virat, you can navigate the proceeding further. Thank you. Thank you, President sir. Now we would like to request Punit Bhai to have an introduction of Prafula sir, a formal introduction of Prafula sir. Jai Jinendra and Pranam to all. It's been a real pleasure and great honor to introduce, while to JCAF, CA Prafula Chhajer needs no introduction, but it's still a great pleasure to introduce CA Prafula sir.
And before that, happy Guru Purnima to all of you. And sir, हम आपको वंदन करते हैं प्रफुल्ल जी इसके लिए भी. और just to say, C. Prafula sir has been trained under none other than respected CA Bansi S. Mehta, founder president of Bansi S. Mehta and Company. He has been dedicated to the regional council, that WIRC, and at central council for last so many years. Has served at the CH. He was immediate, as it has been said, he was immediate past president for the year 2019 and 20. Currently, is also elected as the chair of executive committee of World Congress of Accountants, constituted by IFAC, and that entire World Congress shall be there in India under his guidance only. Prafulla sir is also director of CAPA, that is Confederation of Asia Pacific Accountants. He is also a special invitee of SMP committee of IFAC, that is former board member of SAFA. In past, has also served as an independent board member of IRDA, that is Insurance Regulatory and Development Authority. He's been very active with IMC and a special invitee of Banking and Finance Committee of IMC. He has been contributing regularly on weekly column of Maharashtra Times on issues related to taxation and investments. His intellectual acumen has called for him to appear as a guest speaker on various television channels like Star Maza, IBN Lokmat, and DD India. Sir, under your guidance, Institute have really earned greater heights, and we would like to learn more from you. And over to you, sir. Please guide us. Thank you very much, Puneet Bhai. ऑडियो नहीं आ रहा है. ऑडियो. हेलो. हाँ सर, आ रहा है सर, आ रहा है सर. हाँ, मैं कह रहा था सबसे पहले जय जिनेंद्र. और जैसा हर चीज में आजकल डिस्क्लेमर होता नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस होती है. पुनीत भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र है, तो इसी के लिए वो जब जब मुझे मिलते हैं मेरे बारे में कुछ उनका एक दोस्त के जैसा बहुत अच्छा बोलने को मन करता है. मैं इतना कुछ नहीं हूँ, और जो भी कुछ हूँ थोड़ा बहुत जिंदगी में आदरणीय अपने सबके गुरु महाराज श्री नए पद्म सागर जी महाराज, जिन्होंने न कोई आपको और हमको बट पूरे जैन समाज को बहुत अच्छी दिशा देने का, सबको साथ में बांधने का, और एक सारे अपने अपने प्रोफेशनल एरिया में किस तरह से हम प्रोग्रेस करें, उनको सबका एक आशीर्वाद है. और मुझे लगता है मैं भी कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पे जैसे जाते हैं, तो मैं गुरु जी के पास गया तो मैं बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बन गया. आज गुरु पूर्णिमा का दिन है. गुरु जी से लगा के सबको मैं प्रणाम करता हूँ. आदरणीय कोचर जी जो अपने एपेक्स प्रेसिडेंट है जेसीएफ के, जिन्होंने पिछले कुछ साल में बहुत मेहनत करके एक जो जेसीएफ थी उसको एक वापस जैसे जैसे दूध का आइसक्रीम बनाते हैं वैसा सबको समेटा है. प्रदीप भाई अपने ओन स्टाइल में हमेशा एकदम सबको मोटिवेट करके रखते हैं. तो एक जेसीएफ की अच्छी बढ़िया टीम है. आज के प्रोग्राम में बाफना जी, पुनीत भाई, विराग भाई, इन्होंने काफी मेहनत की. और सबसे बड़ी बात है कि हमको जो लीड स्पीकर बोल के आज है वो हमारे आदरणीय डॉक्टर एस.सी. जैन साहब है, जो पूर्व चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थे, और जो आज हमको और सबको एक लीडिंग सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ. आप सोचिए, एक आदमी जो बड़ी लंबे समय तक इनकम टैक्स में या आईआरएस में अपना करियर बनाया हो, कई लोगों से डील किया हो, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ जिया हो, उसने इतना अनुभव आज जो मतलब मिलाया होगा, that he is going to share with us. Sir, on behalf of everybody also I'd like to welcome you. मैं कुछ बहुत ज्यादा तो कहना नहीं चाहूंगा बिकॉज समय बहुत छोटा है आज का वेबिनार का, और हमको अपने आदरणीय स्पीकर साहब को भी सुनना है. 2-3 चीजें मैं खाली बोल देता हूँ कि सबसे पहले मुझे जैन होने का बहुत गर्व है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी, चलो मुझे जैन साहित्य का इतना अभ्यास नहीं है, लेकिन एक बचपन से लगा कि अभी तक जो हमने जैन का थोड़ा बहुत भी जो कुछ सिद्धांत पढ़े हैं, अगर हम वो सारे सिद्धांतों को बीइंग इन द प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो और पर्सनल लाइफ में भी हम अगर उसको थोड़ा बहुत भी फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो आज का जो टॉपिक है लीडिंग सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ,
वो बहुत एक अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। जैन शासन में क्या कहा गया है, जियो और जीने दो। मतलब मुझे तो जीना है, लेकिन मेरे साथ पूरी इकोसिस्टम को जीना है। अगर मैं कोई बिजनेस में हूं तो ऐसे नहीं है कि खाली मेरा ही बिजनेस बढ़े, लेकिन बाजू वाले का भी बिजनेस कैसे बढ़ सकता है। एज अ प्रोफेशनल हूं तो ठीक है, मेरा जो एक्सपर्टाइज है, मुझे अपने परिवार के लिए, अपने ऑफिस के लिए जो मेहनत करना है वो करना है, लेकिन एक पूरी अच्छे से इकोसिस्टम, दो प्रोफेशनल मिलके देश के सामने एक प्रोफेशन का नाम कैसे बड़ा कर सकते हैं, वो एक है। उसके बाद में जैसा है कि फॉरगिवनेस है, मुझे लगता है ये जैन शासन का सबसे बड़ा एक जो चीज है, क्षमापना, जो आप और हम हमेशा मनाते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद में जैन शासन में बहुत सारी चीज है, परस्पर ग्रह जीवना, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एम्ब्रेस लाइफ एम्ब्रेस डेथ। जैसे जिस तरह से आपको जिंदगी मिलती है तो बड़ी खुशी होती है, पूरे परिवार को होती है, वैसे डेथ क्या है, डेथ भी एक मुझे लगता है कि खाली जैसे कहते हैं कि आत्मा अमर है और नए जनरेशन में जाना है, और अच्छे कर्म अगर हम करेंगे तो हमको अगला भाव भी अच्छा मिलेगा। तो मुझे लगता है ये सारी कुछ चीजें हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं श्रावक होने के नाते और एक इंसान होने के नाते ये एक तो हमारी आउटर लाइंस हो गई, लेकिन हमको जब जीना है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एक फंडामेंटल प्रिंसिपल, शायद मैं जिस पर जीने की कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा ये अपने आप को कहता हूँ, इट इज वन लाइफ एंड इट इज माई लाइफ। जीवन एक ही बार है मेरे लिए आज की तारीख में, और जो मेरा अपना है, तो मैं मेरे जीवन को किस तरह से प्रोफेशनली, पर्सनली, मेरे पूरे समाज में किस तरह से ऊंचा करने की शायद अपन कोशिश करेंगे। मेरे थोड़े से कुछ अनुभव है, आप सबके आशीर्वाद से, प्रेरणा से मुझे कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उसका प्रेसिडेंट होने का अवसर प्राप्त हुआ, थोड़ी बहुत सेवा करने का प्रोफेशन को। कुछ कुछ चीजें जो मैंने देखी है, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को जो मिला, सबसे पहली चीज होती है आदमी के अंदर में लीडरशिप है। हर इंसान लीडर है, लेकिन हमको क्या एक आदत हो गई है कि दूसरे किसी को लीडर देखने की होती है। और उसमें क्या होता है कि आप आपके बच्चे को पूछिए, उसको पूछिए आप आपका हीरो कौन है, वो बोलेगा पापा या मम्मी आप मेरे हीरो हो। तो जब आप एक बच्चे के हीरो हो सकते तो सबके क्यों नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है कि हमको किसी से कुछ घबराना नहीं है, लीडरशिप पोजीशन लेनी है। और मुझे लगता है जेसी अपने पिछले 1-2 सालों में जो कार्य करा है, अपार्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ वेबिनार्स, उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लगा के बहुत सारी कोशिश करी है कि जिस तरह से एक आदमी सक्सेस की तरफ बढ़ता जाए। अगर हम देखिए कुछ सालों पहले, 15-20 साल पहले, 25 साल पहले, शायद अली बाबा का नाम किसी ने सुना नहीं था। अगर आप उसकी हिस्ट्री देखोगे तो उसके घर में वो कंपनी बनी है। हम चाइना में क्यों जाए, इंडिया में देखो आप, इन्फोसिस करके कंपनी थी, वो 4 दोस्त मिले उन्होंने, और आज कहाँ के कहाँ गए। तो आपको ऐसे जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल होने के लिए टाटा बिरला फैमिली में ही आपका बर्थ होना चाहिए। आपके कर्म से, अंबानी जी ने देखो कैसे आज इंडिया को नंबर 1 पर अपने आप को लेकर चले गए। तो क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज को हम समझे, उसके साथ में हम अपने आप को करें। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करूं तो आज सब कहते हैं, इंडिविजुअली आप बात करो, सब बोलते हैं नहीं प्रफुल्ल सर अभी साथ में होना पड़ेगा। पहली बात, सब कहते हैं कि सर टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन हम जब घर पे जाते हैं तब कॉन्शियसली हाउ मेनी ऑफ अस आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। सो आई फील कि इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, व्हाट इज गुड फॉर समबडी, इट हैज टू बी गुड फॉर यू। तो जैसे अभी डिजिटल का हीरा है, पुनीत भाई वगैरह थोड़ा इसमें का ज्यादा जानते हैं, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको और हमारी जो प्रैक्टिसेस है वो है, आज देखिए सारा कोविड में सब घर में बंद है, लेकिन बहुत अच्छे से सेमिनार हो रहा है और हर आदमी उसमें फुल्ली पार्टिसिपेटिव है। अटेंडी को भी पूरा आनंद आता है, स्पीकर को भी आता है, किसी को ट्रैवल करने के लिए 2 घंटा कहीं जाना नहीं है, कुछ आना नहीं है। तो इस तरह का जब आपको क्लाइंट को भी सर्व करना है, अल्टीमेटली हम क्या करते थे, घर से निकलते थे, क्लाइंट या 1-to-1 मीटिंग करते थे। मुझे लगता है बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी इस तरह का माहौल सब जगह हो जाएगा कि जब आपको क्लाइंट से या उसके अकाउंटेंट के साथ बात करना है, वो भी ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, सामने सामने बात हो जाएगी, स्क्रीन शेयरिंग हो जाएगा, उसके यहाँ का टैली का बैकअप आपको ऑनलाइन आपके कंप्यूटर पे दिख जाएगा, और इस तरह से हम ऑडिट भी बहुत एक की जगह 2 कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए वो सारी चीजें हमको सीखना बहुत जरूरी है। और जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तो मुझे लगता है कि हम जो भी प्रोफेशन में है सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है मुझे लगता है लीडरशिप की है। सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने देखी और मेरे एक 20 साल के पब्लिक लाइफ में, कम्युनिकेशन। आपको बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेटर होना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप लंबे लंबे स्पीचेस दीजिए या भाषण दीजिए, आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों मोड में है, लेकिन किसी भी तरह से वो इंसान के साथ आपको कनेक्टेड रहना है। जब तक आप कनेक्टेड नहीं रहोगे, आपकी बातें सामने वाले को कैसे मिले। हाल ही में मैं कहीं पर एक कोई
सेमिनार में गया था कुछ महीने पहले, और वहां पे मेरी ऐसी कई लोगों से मुलाकात होती है, और किसी से मुलाकात हुई, और फिर मैं घर आ गया, और बाद में कुछ दिनों के बाद में शी इज अ गर्ल, एक छोटे से शहर में महाराष्ट्र में, बाद में कहीं पर वो मुझसे कनेक्ट हुई तो मैंने देखा उसको सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों में बहुत अच्छी रैंक्स आई है। मैंने उसको तुरंत उसका फोन नंबर ढूंढ के उसको मैंने थोड़ा भी सीनियर हो गया तो डाटा, मतलब बेटा तुम आपको दोनों रैंक है इंटर में फाइनल में, आपने मुझे बताया क्यों? बोले नहीं सर मैं घबरा रही हूँ। बोला कहीं पे आप बताओगे तो मैं कहीं ना कहीं आपके बेटर के लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा है कि एक अच्छी टीम, आपको टीम प्लेयर होना पड़ेगा। और चौथी और लास्ट बात है, बिकॉज उसके बाद में हम जैन साहब को सुनेंगे, कहीं पर भी लाइफ में खुद का जो ईगो है उसको नीचे रखना है और सामने वाले का जो ईगो है उसको ऊपर रखना है। बिकॉज हर आदमी की एम्बिशन होती है, हर आदमी का ड्रीम होता है। अगर आप उसके ड्रीम के साथ अपने आप को ड्रीम को मिलाएंगे तो मुझे लगता है आप जहां पर भी जाओगे सक्सेस आपके साथ में आने की कोशिश करेगा। लोग कम से कम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए निगेटिव नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है, आज का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर है। मैं कॉम्प्लीमेंट्स करता हूँ जेसीएफ को। वैसे तो मैं छोटा हूँ हर चीज में, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कॉम्प्लीमेंट, बट जो कुछ थोड़ा बहुत देखा है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी क्वालिटी और हमारे जो एफर्ट्स एक पूरे के पूरे जेसीएफ प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, सबके लिए कोचर जी, प्रदीप भाई और बाकी पूरी की पूरी टीम महाराज जी के गाइडेंस में जो बिल्ट हो रही है, एक बहुत अच्छा कदम है। और बहुत बहुत जल्दी जैसे टेक्नोलॉजी हमको पकड़ रही है, हम भी एज अ जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन, मुझे लगता है हम भी बहुत अच्छा अपना रिलेवेंस मार्क्स एक सारे सोसाइटी में अभी हम करने की कोशिश करेंगे। मैं वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जेसीएफ को, मेरे सारे सीनियर्स को, सबको मेरा जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम। जैन साहब सॉरी मैंने थोड़ा सा ज्यादा अगर बोल दिया होगा, आपका टाइम थोड़ा मैंने कम कर दिया होगा, बट क्या करें, जेसीएफ अपने घर में है। और कैसे तो आप जब घर में आते हो तो आपको फिर किसी के डर नहीं होता है, किसी की चिंता नहीं होती है। यहाँ के सीनियर भी आपको संभालते हैं, जूनियर आपको प्यार करते हैं। तो मुझे लगता है जेसीएफ का ये माहौल है और ये सब गुरुदेव की प्रेरणा है। गुरुदेव को भी बहुत बहुत वंदन करता हूँ। अपने सबकी शुभकामनाएं शुभकामना हमेशा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। इसी की तरफ मैं वापस अपने शब्द रोकता हूँ और विराग भाई, पुनीत भाई की तरफ वापस माइक को बढ़ाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट्स वंडरफुल। सर आप तो डायरेक्टर भी रहे, जेसीएफ के डायरेक्टर भी हैं आप। Now would like to request our today's birthday boy CA TC Bafna sir to introduce Dr. SC Jain sir. Thank you, Viraj. First of all, I welcome to all the dignitaries on dais, and thank you again to Viraj for giving me an opportunity to heartiest warm welcome of most honorable IRS Dr. SC Jain sir. He is a very honorable personality of Indian Revenue Services. He served in Income Tax Department in Delhi, Calcutta, Bombay, Chennai, Lucknow, etc., up to the Principal Commissioner and Chief Commissioner of Income Tax. He served as a Vice Chairman of Income Tax Settlement Commission for 3 years and involved in the settlement of around 300 complicated cases. He has a very vast experience of search and seizure matters and settlement cases. He has handled challenging charges like Commissioner of Income Tax Central, Direct Criminal and Investigation matters at Bombay. So he is a very great man. After retirement in 2019, he actively involved in guiding the tax professional on direct taxes matters. He is a source of inspiration to all of us. He is a true friend, guide, mentor to all our tax professionals. He is a regular speaker on tax and spiritual subject, for example, theory of karma, meditations, Gita, which are available on YouTube also. So most welcome, most honorable distinguished guests on this board on dais. So welcome SC Jain sir on this platform. Thank you very much again. After this brief introduction, I hereby request Honorable Sri SC Jain sir to please take over the proceeding and enlighten all the today's subject, fundamental rules of successful leading life. Thank you very much. Most welcome, Jain sir, on this platform. Thank you, Bafna ji. I am audible. My voice is reaching. Yeah. Okay. Thank you so much, Bafna ji, for nice words for me.
At the occasion of Guru Purnima, my pranam and my thanks to Prafulla Sajet sir, Kochar Saab, Mukesh Solanki ji, Virag Shah, Mahavir ji and Puneet Mehta and all the participants here. In fact, Guru Purnima में जो गुरु शब्द है वो होता है घु माने अंधकार और रे माने हटाने वाला। तो जो भी जिसके जीवन से अंधकार हटाने में समर्थ हो या हेल्प करे वो गुरु है। तो ये गुरु एक तत्व है, गुरु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। तो अपने जीवन में जहाँ पे हम आज खड़े हैं उसमें कितने लोगों का उसमें योगदान रहा है ताकि हम यहाँ पे पहुंचे हैं, और हम म्यूचुअल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वो गुरु तत्व ही है जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो गुरु तत्व के लिए आज ये गुरु पूर्णिमा के दिन हमको एक दूसरे को म्यूचुअली ग्रेटिट्यूड का भी फीलिंग करना चाहिए और थैंक्स भी कहना चाहिए। थैंक यू। मेरा सब्जेक्ट आज का है हाउ टू लीड अ सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ, व्हाट आर द फंडामेंटल रूल्स। मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके बोलूंगा, उसमें कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख्याल से वो ठीक रहेगा। सो जैसा कि अभी कुछ साजिद साहब ने भी बताया और उससे पहले ये भी बताया गया कि केवल सक्सेसफुल लाइफ से ही हमको तृप्ति का भाव नहीं होता, हमें संतोष का भाव नहीं होता। हमारे जीवन में अर्थ होना चाहिए, सार्थक जीवन होना चाहिए। तो इसीलिए यदि पूरे जीवन को हम दृष्टि करें तो हमारे जीवन का गंतव्य है कि हमें जीवन में सफलता भी मिले और जीवन में अर्थ भी मिले। तो इसकी पहले परिभाषा होनी चाहिए कि सफलता और सार्थक जीवन की क्या परिभाषा है। तो इसमें है एक तो जो भी मेरी मटेरियल नीड्स हैं, जो भी मेरी वांट्स हैं, उनका फुलफिलमेंट, मेरे आजीविका से संबंधित हो सकती है, मकान से संबंधित हो सकती है, जो भी मटेरियल वांट्स हैं, तो उसका एक टर्म है संपन्नता, एबंडेंस। एबंडेंस एक मानसिक स्थिति है कि आई फील आई एम हैविंग एवरीथिंग, गॉड हैज गिवन मी एनफ, वो तृप्ति का भाव। फिर एक हेल्थ के पॉइंट से मेरी एक अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, वो भी सक्सेस और सार्थक जीवन के लिए जरूरी है। माइंड के लेवल पे आई मस्ट हैव पीस ऑफ माइंड, वो भी बहुत जरूरी है। उसके बाद रिलेशनशिप इज अनदर एस्पेक्ट कि मेरे अपने परिवार परिजनों से, अपने कुटुंबीजनों से, अपने समाज से बहुत अच्छे स्वस्थ और प्रेमपूर्ण रिश्ते रहें, उससे मेरे जीवन में हर्ष और उल्लास रहता है। उसके अलावा मेरे जो जीवन में है जेस्ट फॉर लाइफ, मुझे जीने में इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि मुझे जिंदगी एक बहुत जॉयफुल लगे, वो भी एक सक्सेस और सार्थक जीवन का है। और जो सब में इंपॉर्टेंट है वो है कि मेरी लाइफ में कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जिस क्रिएटिविटी के एक्सप्रेशन से मैं टाइमलेसनेस में पहुंच जाता हूँ, मुझे समय का भी अनुभूति नहीं रहती और मुझको लगता है कि कहीं मैं इसके लिए बना हूँ। तो मेरा जो पैशन है, मेरा जो लाइफ का पर्पज है, जिसके लिए मैं इस जीवन में आया हूँ, यदि मेरा उससे परिचय हो जाए कि मेरा क्या टैलेंट है और उस टैलेंट को मैं एक्सप्रेस करूं, तो उससे जो मुझे तृप्ति और उल्लास और उत्साह मिलता है और उससे जो मैं सेवा करता हूँ समाज की, अपने आसपास वालों की, उससे में एक जो एहसास होता है मुझे, वो मेरे जीवन को अर्थ देता है। और सब में इम्पोर्टेंट जैन होने के नाते और भी ज्यादा कि मैं हमेशा अपने अंदर डिविनिटी का, कि मैं आत्मा हूं, मैं कॉन्शियसनेस हूं, मैं परमात्मा का हिस्सा हूं, इस तरह का मुझे हर एक अपने कृत्य में, हर एक मेरी गति में पल पल इस बात का एहसास होने लगे कि मैं जीता जागता आत्मन हूं। और उससे जो जब मैं आत्म केंद्रित होके, आत्म फोकस होके अपना कार्य करता हूं, तो उसमें मेरे जीवन में प्रसन्नता रहती है, एकत्व का भाव रहता है, बड़ा उल्लास रहता है। और जो बहुत सारे जो आइसोलेशन है, सेंस ऑफ सेपरेशन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, उस सब से मैं ऊपर उठ जाता हूँ। तो जीवन का भी यही उद्देश्य है और अध्यात्म का भी यही उद्देश्य है। तो इस लेक्चर का जो मैं ये टॉक दे रहा हूँ, इसका पर्पज यही है कि हम उन आध्यात्मिक मूल्यों को, उन नियमों को एक बार पुनरावृत्ति करें जो हमारे जैन आगमों में भी कहा गया है, हिंदुओं के सनातन धर्म में भी कहा गया है। वास्तव में हर एक रिलीजन में एसेंस में उन्हीं बातों को कहा गया है। उनके कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन एसेंस में वो सभी हैं। तो मैं फर्स्ट रूल से शुरू करता हूं। पहला नियम है नोइंग योर एसेंस,
प्रत्येक व्यक्ति को यदि इस सफलता की जो मैंने व्यापक परिभाषा दी, जिसमें कुछ बचता ही नहीं है, आपका हेल्थ है, आपका माइंड है, रिलेशनशिप है, आपका परस्यूट ऑफ पैशंस है, एंड एक्सपीरियंसिंग डिविनिटी इन एवरी एक्टिविटी ऑन डे टू डे बेसिस, इस सब के लिए सब में पहले आपको अपना एसेंस, आपका सार क्या है, व्हाट आर यू, हु एम आई, इसको समझना होगा। इसी में हमसे गलती होती है। हम भौतिक जगत पे रहते रहते अपने को केवल बॉडी और माइंड केवल इतना समझ लेते हैं कि मैं शरीर, देह और मन हूं, बस देह और मन का मैं कॉम्बिनेशन हूं। बट इसके पीछे जो सत्ता है, चेतन सत्ता, जिसको जैन शास्त्रों में जीव कहा है या आत्मन कहा है, दूसरी जगह पे इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, कुछ लोग इसको अवेयरनेस कहते हैं, उस सत्ता से मेरा कनेक्शन छूट जाता है, वही मेरा सोर्स है। तो मुझे अपने स्रोत के विषय में पल पल में, हर घड़ी उससे मेरी कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि मालिक कौन है इसमें। ये बॉडी माइंड एक उपकरण मात्र है, बॉडी माइंड अहंकार। तो या तो मैं ईगो बेसिस पे रहूं, ईगो फोकस करके मैं अपने जीवन को जीऊं, या मैं आत्म केंद्रित होके आत्मा को अपने फोकस में लेकर के ये अपना जीवन जीऊं। दो तरह के लोग होते हैं। अधिकांश लोग अपना जीवन ईगो सेंट्रिक करके जीते हैं। तो उनकी क्या पहचान है, उनके पास कितना वेल्थ है, उनके पास का लाइफ स्टाइल क्या है, उनके पास क्या क्या वस्तुएं हैं, वो वस्तुपरक जीवन है। उसमें हमारा जो आकलन होता है किसी व्यक्ति के लिए, वो वस्तुपरक होता है, और वस्तुओं में जो है हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। उसी हिसाब से हमारे मन में सेंस ऑफ फियर आएगा, डेप्रिवेशन आएगा, मेरा ये बिजनेस कम हो गया, ये वस्तु कम हो गई, मेरा जो लोगों के साथ वहां पे जो मेरी पदवी थी, पद प्रतिष्ठा है, वो कम हो गई, मेरा इंप्रेशन, मेरा प्रभाव कम हो गया। तो जो वस्तुपरक जीवन जीता है, जो ईगोसेंट्रिक जीवन जीता है, उसके जीवन में हमेशा ये उतार चढ़ाव आते हैं। तो उस ईगोसेंट्रिक जीवन जीने पे वो सार्थक जीवन जी ही नहीं सकता, वो सफल जीवन जी ही नहीं सकता। उसका जीवन हमेशा उपद्रव के माध्यम से गुजरेगा, उसके जीवन में तूफान आते रहेंगे, क्योंकि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो एवरीडे पैदा होती हैं। और यदि केवल हमारी पहचान हमारी वस्तुओं से है, हमारा जो ईगो है उसके हिसाब से हम चलते हैं, तो हम लोग हमेशा डगमगाते रहेंगे, हमारे माइंड में एंजाइटी रहेगा, फियर रहेगा। तो दूसरा जो दृष्टिकोण है, जो व्यापक दृष्टिकोण है और जो स्पिरिचुअल दृष्टिकोण है, उसमें मैं अपने एसेंस को पहचानता हूं कि मेरा एसेंस है चेतन सत्ता, उसको आत्मा कहिए या अवेयरनेस, वो मेरा स्रोत है। और जो मेरा स्रोत है, एसेंस है, जिससे मेरी ये बॉडी माइंड क्रिएट हुई है, बुद्धि क्रिएट हुई है, अहंकार क्रिएट हुआ है, यदि मैं उससे जुड़ जाऊं तो उसी चेतन सत्ता से सारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। सबके क्रिएशन का एक ही आधार है, प्योर कॉन्शियसनेस। जिस चेतना ने मेरे शरीर को, मेरे मन बुद्धि को बनाया, उसी चेतना से बाकी दूसरे प्राणी और उसी चेतना से सारे संसार का निर्माण हुआ है। तो हम स्रोत के लेवल पे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महावीर ने भी ये बात कहा, दूसरे शब्दों में कहा, परस्परो ग्रहो जीवानाम, सारा जीवन एक दूसरे पे आश्रित है। आज कोरोना के टाइम में भी ये बात हो रही है कि एक छोटा सा कोरोना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसने थोड़ा सा उपद्रव किया तो सारे जीवन में अस्थिरता आ गई। तो हम लोग अपने स्रोत के स्तर पे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तो हमको अपने को उस स्रोत से कनेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही हम उस स्रोत से जुड़ जाते हैं, विच इज अवर एसेंस, तो वो एसेंस बहुत पावरफुल है। उसकी क्या क्या क्वालिटी है कॉन्शियसनेस की? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, उसमें अनंत संभावनाएं हैं। जब आप उससे कनेक्ट हो, जो सोचें वो आप करने के लिए यू हैव एबिलिटी टू क्रिएट एनीथिंग विद एफर्टलेस ईज। इनफाइनाइट क्रिएटिविटी है उसमें, दूसरा उसका गुण है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है उसमें, जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारा सार है, जो हमारा सब्सटेंस है, उसमें इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है। उसमें इनफाइनाइट ब्लिस है, उसमें जॉय भी पूरा है, और उसमें क्रिएटिविटी पूरी है, उसमें इंटेलिजेंस पूरी है, उसमें इनफाइनाइट पोटेंशियलिटी है। कुछ भी आप, एनीथिंग यू कैन क्रिएट। और रिलेशनशिप में भी उसमें जो है एब्सोल्यूट रिलेशनशिप विद एंटायर यूनिवर्स, क्योंकि फीलिंग ऑफ वननेस है उस स्रोत में। लेकिन जब हम ऊपरी सतह पे देखते हैं अपने को, तो जैसे समुद्र है, समुद्र की ऊपर लहरें
और छोटे छोटे जो बूंदे होती हैं या जो बुलबुले होते हैं वो अपने को अलग अलग मानते हैं एक दूसरे से, बट 2 मिनट में वो नष्ट हो जाते हैं। बट समुद्र के नीचे जाके देखें तो सब एक ही है। ऐसे ही हम सभी का स्रोत एक ही है, वो चेतना है, कॉन्शियसनेस कहिए, अवेयरनेस कहिए। लेकिन ऊपरी सतह पे हम जीवन जीते हैं, ईगो के लेवल पे जीते हैं, इसलिए हम लोगों का जीवन भ्रामक होता है। हमारे जीवन में स्ट्रेस आता है, हमारे जीवन में एंजाइटी आती है, हमारे जीवन में लाभ और हानि का हमारे ऊपर ज्यादा फर्क पड़ता है। तो पहला स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है यू नो योर नेचर, नो दाई सेल्फ। सोक्रेटिस ने भी कहा, ये ग्रीक फिलोसफर्स ने भी कहा, हम महावीर ने भी ये कहा, नो दाई सेल्फ, अपने को जानो आप क्या हो। बुद्धा ने भी ये कहा, और फिर कहा बी ए लाइट टू योर सेल्फ। तो पहले हमको अंदर, अपने अंदर में जाना है और अपने स्रोत से कनेक्ट होना है। अब हम स्रोत से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि समय की सीमा है, उस हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा टच करते हुए इन सूत्रों को बताऊंगा। तो अंदर से ज्वाइन करने का 2-3 तरीके बताए गए। पहला तो है यू ऑब्जर्व साइलेंस एवरी डे। आप जब साइलेंस जाते हैं और आपका जो मन है जिसमें विचार आते हैं जाते हैं और वो हमेशा चिंतन और विवेचना करता रहता है, नरेटिव कहता रहता है, माइंड में हमेशा स्टोरी चलती रहती है। तो यदि अर्ली मॉर्निंग में आप थोड़ा शांति से बैठें, यदि वो साइलेंस ऑब्जर्व करें, तो धीमे धीमे कभी कभी ऐसा होगा कि साइलेंस पल आएंगे। जो वो साइलेंस है वही उसका स्वभाव है, कॉन्शियसनेस का भी। जैसे ही आप टोटल साइलेंस में जाते हैं इंटरनली, so you get connected to your source. That is one. Another is doing meditation every day. When we do meditation, जब हम ध्यान करते हैं, प्रेक्षा ध्यान करें, श्वास प्रेक्षा करें, आनापान सति करें, कोई भी तरह का ध्यान करें जिससे हमारे विचार जो हैं, विचार रुकें, मन हमारा शांत हो, तो हम अपने स्रोत से, जो कि चेतना है, उससे हम कनेक्ट होते हैं, अपने सोच से कनेक्ट होते हैं जिसमें सारी पावर है। तो वो दूसरा है मेडिटेशन, डूइंग मेडिटेशन इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। हम लोगों ने रिचुअल्स में प्रेयर्स और कुछ स्तुति पढ़ना शुरू किया, बट स्तुति में हम लोग पूरी तरीके से फोकस नहीं होते। नहीं तो उस स्तुति से भी मेडिटेशन हो सकता है, बट यूजुअली हमारा माइंड कहीं और होता है और हम उसको पढ़ते हैं, तो उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होता। तो इसलिए मेडिटेशन करना बेटर है। इन मेडिटेशन you go into that silence. तीसरी चीज है कि when you commune with nature, नेचर के साथ आप कम्यून करें। सुबह को पेड़ पौधों के आसपास खड़े हों, पेड़ पौधों में के आसपास जब या फॉरेस्ट में आप जाते हैं या ग्रीनरी में जाते हैं, तो आपके अंदर खुद ही एक साइलेंस आती है, क्योंकि सृष्टि में जो ये प्रकृति है, निसर्ग है, इसके अंदर एक साइलेंस है और वो साइलेंस आपको भी प्रभाव करती है। या अर्ली मॉर्निंग में उठें, आप जैसे सो करके उठेंगे, आप देखेंगे कि आपका मन शांत है। उस समय आप बाहर बालकनी में बैठ जाएं और अपने मन को ओवर एक्टिव ना करें। आज का समय बड़ा प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। सो ये 3 तरीके हैं जिनसे कि हम अपने सोच से कनेक्ट होते हैं। ऑब्जर्विंग साइलेंस, डूइंग मेडिटेशन सो दैट वी क्वाइटन अवर माइंड, एंड थर्ड है कम्यूनिंग विद नेचर। इन 3 चीजों से हमारा माइंड शांत होता है। जब हम जितना शांत होंगे उतना ही हम अपने सोर्स से कनेक्ट होंगे, और वो सोर्स इतना पावरफुल है हमारा कि यदि हम ऊपर के सतह पे कोई काम करते हैं और उसमें कितना परिश्रम करते हैं, जबकि अंदर बैठे बैठे हम शांति में एक बार पहुंच गए, तो केवल हम एक थॉट डालेंगे पावरफुल, एक इंटेंशन डालेंगे, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। बिकॉज यू गेट कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल माइंड, टू द कॉस्मिक कंप्यूटर। तो 2 तरीके हैं आप पे करने का, एक तो कान में सीधे पकड़ूं और एक सो घुमा के पकड़ूं नीचे से, पैर के नीचे से कैसे पकड़ पाऊंगा। तो आज के जीवन में हम लोग, अधिकांश लोग इस बॉडी माइंड को यथार्थ मान के बॉडी माइंड के हिसाब से काम करते हैं। बॉडी माइंड की लिमिटेड कैपेसिटी है, ईगो की लिमिटेड कैपेसिटी है, बट जब हम अपने को चेतना मान के अपने सोर्स से कनेक्ट होके कोई काम करते हैं, तो एंटायर कॉस्मोस, एंटायर यूनिवर्स गिव्स all its energy to us। हमको केवल उसके साथ कनेक्ट होकर के सिंपली इंटेंट करना है, विजुअलाइज करना है, और एंटायर कॉस्मिक कंप्यूटर, एंटायर एनर्जी ऑफ यूनिवर्स विल हेल्प अस इन गेटिंग इट मैनिफेस्टेड। वो हम अगले सूत्रों में बताएंगे। समय कम है तो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, इसलिए तो ये हमको पहले बार बार देखना होगा। यही हमारे गुरु भगवंतों ने कहा कि आप आत्मा हो, आप चेतन सत्ता हो, और उसका आपको बोध होना चाहिए।
और जैसे ही हम आ जाते हैं, इसके लिए एक कहानी भी है, वो स्टोरी भी बता दूं। एक मोची होता था, कहीं वो नगर में बैठता था और एक पेटी पे बैठता था, वो उस पे सामान रखता था अपना और जूते वगैरह साफ करता था, और उसको चप्पल वगैरह को वो रिपेयर करेगा, कुछ लोग उसे पैसा दे जाएंगे। एक दिन बुद्ध पुरुष कोई वहां से सेंट निकले, उनकी चप्पल भी टूटी हुई थी, उसने उस मोची से कहा इसको ठीक करो, उसने ठीक की और फिर वो उसको कुछ पैसे देने लगे। तब उन्होंने उससे पूछा कि तुमने जो लकड़ी का ये संदूक रखा है, इसमें क्या है तुमको मालूम है? कहने लगा मुझको इसमें नहीं मालूम कि इसमें क्या है। क्यों नहीं मालूम? इसमें ताला लगा हुआ है और ताले में जंग लग गया, तो ये कैसे आपको मिला और क्यों आप इसको रखे हुए हो? वो कहता है ये तो मेरे पिता के सामने टाइम से रखा हुआ है, पिता ने मुझे सिखाया, पिता भी इसके ऊपर जो है बैठ करके कभी खाना खा लेते थे, हम अपना सामान रख लेते हैं और ये ऐसे यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि इसका काम कुछ ज्यादा है नहीं, ये बस एक स्थान का सूचक है और कभी कदार इस पे सामान रखने के लिए हम यूज कर लेते हैं। तो उसने, बुद्ध पुरुष थे वो, उन्होंने कहा इसको खोल के देखो, ताला खोल के देखना चाहिए आखिर में इसके पास है क्या। तो उसकी भी कुछ समझ में आया, क्योंकि बुद्ध पुरुष की बात जो है, एनर्जी जो है वो हमको आराम से ट्रांसमिट होती है। और फिर वो ताला, उसकी कोई चाबी नहीं थी तो उसको तोड़ा गया, और जब तोड़ा तो उसके अंदर से बहुत हीरे जवाहरात, माणिक, रत्न निकले। कहते हैं उसके अंदर इतनी संपदा थी कि पूरे नगर की सारी संपत्ति को भी यदि तोला जाए तो उससे उसके मूल्य कम पड़ेगा। तो ऐसा ही ये सब हम पे लागू होता है। हम जो है बाहर बैठे हुए मोची बने हुए हैं वास्तव में, कितनी भी बड़ी किसी भी संपत्ता हो, जो हमारे अंदर है, जो अनमोल चीज हमारे अंदर है, जो एटर्नल है, इमोर्टल है, जो कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है, उधर हम यदि उसका कनेक्शन जोड़ लें, बड़े पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ लें, तो हमारी क्या कैपेसिटी हो सकती है, हमारी क्या एबिलिटीज हो सकती हैं, हम किस तरह से अपने जीवन को सहजता से जी सकते हैं प्रेम के साथ, और हम लोग बहुत बुलंदियों पे जा सकते हैं। तो इस कहानी में यही है कि क्या हमको बाहरी सतह पे जीना है, अपने को केवल शरीर और मन मान करके सबसे सेंस ऑफ सेपरेशन से, या हमको अपने अंतः स्थित चेतना के लेवल पे जीना है कि सभी आत्माएं हैं, सभी बुद्ध आत्माएं हैं, बुद्ध शुद्ध आत्माएं हैं, सबसे मैं जुड़ा हूं। तो उस समय जो मेरा सृजन होता है, मेरी कैपेसिटी टू क्रिएट, कैपेसिटी टू लिव, उसका वो टोटली उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। द लव एनर्जी विच आई जनरेट, वो बहुत ही अद्भुत होती है। तो ये पहला सूत्र है, नोइंग दाई सेल्फ, आप अपने को जानो, आप कॉन्शियसनेस और चेतना हो, और उससे अपने सोर्स से जुड़ो, क्योंकि उस सोर्स से जुड़ गए तो उस स्रोत की इतनी पावर है, उसकी इतनी कैपेसिटी है, और उस सोर्स से ही पूरा यूनिवर्स जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही आप उस स्रोत से कुछ भी मांगोगे या कुछ भी वहां पे उस स्रोत पे जाके इच्छा करोगे, तो उसके मैनिफेस्टेशन में यूनिवर्स की सारी पावर्स आपके साथ समर्पित भाव से आपका सहयोग करेंगी और वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारे जो माइंड के जो सॉफ्टवेयर हैं, उसमें भी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हमको कुछ चेंजेस करने हैं। वो चेंजेस आपने सब सुने भी होंगे, बट मुझको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। एक है एक्सेप्टेंस, टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ दिस मोमेंट। आज मैं इस समय में मेरी जो भी स्थिति है, जो भी परिस्थिति है, जैसी भी वस्तु, घटनाएं, अनुकूल प्रतिकूल मेरे सामने हैं, उस सब को मैं पूरी तरीके से स्वीकार करूं, ताकि मैं अतीत के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट ना करूं। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि आज जो भी कुछ हुआ है, जो स्थिति में मैं हूं, इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आई हैव क्रिएटेड दिस सिचुएशन बिकॉज ऑफ माई कर्माज, बिकॉज ऑफ माई स्टेप्स, जो मैंने इस जन्म में लिए, पिछले जन्म में लिए, कितने जन्मों में लिए, उस सब का जो एग्रीगेट परिणाम है, उस परिणाम के कारण आज मेरी ये स्थिति है। तो लेट मी, आई शुड नॉट ब्लेम एनीवन, मुझे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थिति को, किसी को ब्लेम नहीं करना है। मुझको सर्व स्वीकार्यता के भाव से, टोटल एक्सेप्टेंस के भाव से उसको जो है स्वीकार करना है। जैसे किसी का मकान है, वो तूफान में गिर गया, अब तूफान में गिर गया तो मान लो मेरा मकान है, तूफान में गिर गया तो वो तो गिर गया, अब मैं उसके लिए रोए जाऊं और उस पर काम ना करूं, तो हाउ कैन आई मूव फॉरवर्ड इन द लाइफ? सो सेम वे, व्हाटएवर हैज हैपेंड, इट हैज हैपेंड,
You cannot change it with whatever discussion. Only you can take certain lessons from your past. कहीं पे किसी व्यक्ति से कुछ तकलीफ हुआ, कुछ हुआ, आपको और ज्यादा अपने को प्रोटेक्ट करके उन चीजों को प्रोसीड करना है, दैट इज ऑल। तो सर्व स्वीकार्यता का भाव रखें ताकि आप पीछे का जो भी स्थिति हुई है, पीछे के जो हादसे हुए हैं, उनसे आपके माइंड पे टर्बुलेंस ना हो, क्योंकि उससे हम अपनी एनर्जी अननेसेसरली पास की चीजों में खोते हैं। और हमारी एनर्जी जो है, जो कि आत्मा से कनेक्ट होती है, उसी एनर्जी से हम लोगों को जीवन में आगे क्रिएट करना है। आगे हमको जो भी मैनिफेस्ट करना है उसी एनर्जी से करना है। और हमको लव भी चाहिए, जॉय भी चाहिए, रिलेशनशिप अच्छी चाहिए, मीनिंगफुल लाइफ चाहिए। तो व्हाई टू अननेसेसरली वेंचर इनटू ए फील्ड ऑफ टर्बुलेंस, उसको वहीं छोड़ दें। फर्स्ट है टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ दिस मोमेंट एज इट इज। सेकेंड है नॉन जजमेंटल। हमको अपने जीवन में कभी भी किसी वस्तु को, किसी परिस्थिति को, किसी घटना को, किसी स्थिति को जजमेंट नहीं करना है, गुड और बैड में। हम अननेसेसरली कभी कभी बहुत सारी चीजों में अपना एक जो है हमारा आईना, मिरर, उस पर डाल देते हैं। और उससे क्या होता है, उस मान्यता के आधार पे बहुत बार हमसे बहुत गलतियां होती हैं। किसी को हमने बुरा मान लिया, किसी को अच्छा मान लिया, किसी पे ब्लेम कर दिया। तो स्पिरिचुअलिटी सेज you should never be you should be non-judgmental. You should not judge anything, any person, any circumstance, any situation. It is good for you. When you judge, आप अपनी माइंड की बहुत सारी एनर्जी उस पर डालते हैं। अरे ये आदमी तो बदमाश है, ये आदमी तो ऐसा है। उससे क्या होता है, हम लोगों को हमारा फोकस पूरा अपनी चेतना पे, अपने स्रोत पे, और जो हम जीवन में आगे लाना चाहते हैं, हमारा वन पॉइंटेड फोकस उस पर होना चाहिए। दाएं बाएं हमको देखना नहीं है, केवल कहीं अपने को प्रोटेक्ट करना तो कीजिए, अदरवाइज नो। सो नेवर नेवर वी शुड नेवर जज एनीवन। दिस इज द सेकंड सूत्र। तीसरा है नो कंप्लेंट, नो एक्सपेक्टेशन। आप किसी से कोई शिकायत ना करें, किसी से कोई अपेक्षा ना रखें, क्योंकि जो आपके कर्म हैं उसके अनुसार आपको चीजें मिल रही हैं। दूसरे लोग निमित्त मात्र हैं। कभी जैसे दो पानी की लाइन है, दो टोटियां, एक से गर्म पानी आता है, एक से ठंडा आता है। जो गर्म आता है उससे जल गया, तो उसमें क्या उस टोटी का जो है कुछ दोष है? ऐसी जैन शास्त्रों में कहा है कि ये निमित्त मात्र है। कर्म में यदि मेरा बुरे कर्म का कोई परिणाम है, आज मेरी कोई दुर्घटना होनी है, तो उसके लिए कोई निमित्त बनेगा, तो वो तो वास्तव में विक्टिम है कि वो मेरे लिए किसी ने मुझको ठोकर मारी। तो ये जो परिणाम मैं भोग रहा हूं, इसके लिए मैं उससे कंप्लेंट करूं या ऐसी मैं किसी से एक्सपेक्टेशन करूं, एक्सपेक्टेशन होने के बाद भी मुझे मिलना होगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जैसे आपने ये कर्म के सिद्धांत को जान लिया कि वॉट एवर यू आर गेटिंग दैट इज योर ड्यू, वॉट इज यू आर नॉट गेटिंग दैट इज नॉट ड्यू टू यू। तो जैसे ही आप इस चीज में आ जाते हैं, सो नो कंप्लेंट्स, नो एक्सपेक्टेशन। एक ही व्यक्ति एक समय में आपका मित्र, आपके ब्रदर से ज्यादा आपके साथ खड़ा रहता है, और एक मिनट में आपका ब्रदर भी आपका बैरी बन जाता है। तो ये सब कार्मिक इफेक्ट है। इससे भी हमें अपनी माइंड की एनर्जी को निकालना है, अदरवाइज हमारे माइंड के नेगेटिव चलते रहेंगे। और यहाँ पे हम कह रहे हैं अपने माइंड को हमें ठंडा करना है। तो ये सूत्र जो है वो माइंड को ठंडा करने के हैं। फिर नेक्स्ट है यू हैव टू गिव रिस्पॉन्स एंड नॉट रिएक्शन। हम हर एक स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, हमारा रिफ्लेक्स माइंड होता है। किसी ने बुरा कहा, हम उसको एकदम गुस्से का प्रतिकार या गुस्से का जो रिएक्शन होगा वो गुस्सा होगा, अच्छे का अच्छा होगा। तो ये कहते हैं कि नहीं, उसने जो कुछ किया, उधर से एक बॉल आई, बट यहाँ बॉल पकड़ के अब हमको बॉल कैसे फेंकनी है, तो हमको सोच समझ के कॉन्शियसली अपना रेस्पॉन्स देना है। इससे भी हमारा माइंड जागृति में जाएगा और हमको ठंडा भी, हमें ठंडापन महसूस होगा। फिर है कि आप जो है हमेशा पॉजिटिविटी पे कंसंट्रेट करें। आपकी तरफ से जो भी कुछ एक्शन हो वो पॉजिटिव होने चाहिए, नो नेगेटिव एक्शन। उसका सिद्धांत मैं बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बताऊंगा। यदि हम कहीं भी कोई निगेटिविटी लाते हैं तो उससे एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, और वो फ्रीक्वेंसी वापसी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाली फ्रीक्वेंसी से होता है। और एक और बहुत बड़ा सूत्र है जो यहीं पे इसी लेवल पे बता दूं कि हम लोगों को हर एक बैड सिचुएशन में, प्रतिकूल स्थिति में भी सिल्वर लाइनिंग को देखना चाहिए।
कोरोना है, कोरोना के लिए लोग अब ट्राई कर रहे हैं। कोरोना हैज बीन ए वेरी गिफ्ट। नेचर अपने को कितना हील कर लिया। आप लोगों को घर में बैठने का टाइम नहीं था, घर में बैठ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सज्जन संगति कर रहे हैं, लर्निंग को बढ़ा रहे हैं। तो हर एक चीज जो है उसका एक कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है इस द्वंदात्मक सृष्टि में जिसकी कोई पॉजिटिव साइड ना हो। तो हम लोगों को हमारी जो दृष्टि है वो दोष दृष्टि ना होकर के गुण दृष्टि, और यदि हम सेंट्रल लेवल पे जाते हैं तो मंगल दृष्टि होनी चाहिए। जो भी है वो नेचर क्रिएट कर रही है, यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है, और उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा है। यदि हम उसको अच्छे को देखने में लग जाएंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा बुरा रहेगा ही नहीं। और एक जो और इम्पोर्टेंट है वो है ट्राइंग टू ओवर स्ट्रेच। जब हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए तो हम उसके सामने घुटने टेक देते हैं। घुटने नहीं टेकने हैं, क्योंकि हमारा स्रोत तो इनफाइनाइट है, अनंत है, उसमें अनंत संभावनाएं हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व होने के तो अनंत तरीके हो गए, तो हम लोगों को ढूंढते रहना है। इसके लिए लोग एक एग्जाम्पल देते हैं, बुद्ध पुरुषों ने एक एग्जाम्पल दी, वो है ईगल की। वो कहते हैं कि बारिश होती है, बारिश जैसे ही शुरू होगी जितने भी चिड़ियां हैं, पक्षी हैं, वो सब अपने अपनी घोंसलों में या शेल्टर में आ जाएंगे, क्योंकि बारिश होने वाली है। बारिश में वो जो है फ्लाई नहीं कर सकते। ईगल ईगल को नहीं मानना है, तो वो ईगल बारिश से ऊपर अपने को ले जाता है। बारिश जिस तल पे बारिश हो रही है, जहां से बूंदे गिर रही हैं बादलों की, उन बादलों से वो ऊपर चला जाता है ईगल, और आराम से बैठ करके मस्ती से बारिश को गिरते हुए देखता है। तो ईगल से हमारे अंदर तो ज्यादा संभावना है। तो हमको अपने मनोबल को, अपने मोराल को बढ़ाना है, और जो भी हमारे सामने समस्या है, यदि वो समस्या जितनी मुश्किल है, यूनिवर्स चाहता है, अस्तित्व चाहता है महावीर के वाणी में कि हम उसमें उसको समाधान करने के लिए ऐसा सॉल्यूशन ढूंढें जो अभी तक इसने ढूंढा ना हो। तो यदि हम उसमें अपने विवेक को लगाएंगे तो डेफिनेटली हम जागृति की ओर बढ़ेंगे, और उसमें हमें आनंद भी मिलेगा। और 10 लोग जो है, 10 लोग कहेंगे कि भी इस आदमी ने ऐसा हिम्मत करके ऐसा इसका तोड़ निकाला, और उससे हमारे जीवन में एक अर्थ मिलेगा दूसरों के लिए। Otherwise, so we keep on crying for small things. We keep on judging people for no reasons. We keep on blaming others for no reason. So, और रेजिस्टेंस जो है माइंड की, वो हमको बिल्कुल खत्म करनी है। तो ये सारी चीजें जो मैंने सॉफ्टवेयर बताया, इनमें एक पॉइंट को लेकर के 1-2 घंटे की चर्चा हो सकती है। लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट, अभी वर्तमान इस क्षण में जीना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है माइंड को स्टिल करने के लिए। इस क्षण में 100% मुझे यहाँ पे होना है। अभी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो केवल यही, मेरा माइंड को और इधर उधर नहीं जाने देना है। तब मैं जीवन को अच्छी तरह से जीता हूँ, प्रगाढ़ता से जीता हूँ। तो ये कुछ सूत्र हैं इसके, knowing thyself and connecting to your source. This is the first rule. Second rule है rule of giving. हम देने का सिद्धांत। हमारे जीवन में यदि हमको सफलता चाहिए, खुशी चाहिए, जितना भी मैंने बताया, और अर्थ चाहिए, तो हमको यूनिवर्स को देखना होगा। यूनिवर्स जो है वो डायनामिक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। एवरीथिंग इज फ्लोइंग। एफ्लुएंस का मतलब ही होता है फ्लो, फ्लो, एवरीथिंग इज फ्लोइंग। नदी का स्रोत है पानी। नदी चलती रहती है, जाती रहती है, देती रहती है पानी सबको, और फिर सागर में मिल जाती है, और सागर से पानी वाष्प होकर उड़ता है और वो पहाड़ों में चला जाता है, और पहाड़ों से बर्फ पिघल के फिर नदी में आता है। तो देयर इज ए एनर्जी फ्लो, साइकिल है, पूरा सर्कुलेट हो रही है एनर्जी बाय गिविंग एंड टेकिंग। ऐसी सन है, सनलाइट देता है, वो दे रहा है, उसको कुछ इससे नहीं है कि कोई उसको वापसी करे या ना करे। ऐसे ही जो है ट्रीज हैं, वो फल देते रहते हैं। They never expect anything in return. So if you have to grow in life, if you have to make your life meaningful, you try to give what you want to get. हम लोग पहले पाना चाहते हैं और फिर देना चाहते हैं। मैंने एक बार इस सूत्र पे कहा था कि महावीर का सूत्र भी हमने उलट दिया। हमने कहा जियो जीने दो, वो सूत्र नहीं है। जीने दो ताकि तुम जी सको, ये महावीर का सही सूत्र है। You give and then you will get. You let others live, then only you can live happily. That is the सूत्र। लेकिन उस सूत्र को हमने अपने दृष्टिकोण से कि पहले हम जी लेते हैं,
हम खा लेते हैं, फिर बचा कुचा कुछ है तो वो थोड़ा दूसरों को दे देंगे। दैट इज नॉट महावीर सूत्र। तो यहाँ पे भी ये कहते हैं यू गिव एंड इन टर्न यू विल गेट, क्योंकि यूनिवर्स सर्कुलेट हो रहा है। तो वो कह रहे हैं जीवन में जो भी आपको चाहिए उसको आप देना शुरू करो। आपको गुड हेल्थ चाहिए, लोगों को हेल्थ निर्माण में, लोगों के आयु निर्माण में, लोगों की को मेडिसिन दो। आजकल कोरोना चल रहा है, कहीं पे किसी को मेडिसिन की जरूरत है, हॉस्पिटल में किसी को भर्ती कराना है, किसी को कोई खाने के लिए भूखा है, जो भी आप सब चीजें दे रहे हो, इन टर्न दे विल कम मल्टीफोल्ड टू यू। तो जिन चीजों को आपको जीवन में चाहिए, इफ यू वांट टू क्रिएट जॉय इन योर लाइफ, यू मेक अदर्स लाइफ जॉयफुल। इफ यू वांट टू क्रिएट हेल्थ इन योर लाइफ, you make others healthy. If you want to create good relationship, then you also ensure that others relationships are also healthy and joyful. तो ये जीवन का एक सर्कुलेटिंग है। तो इसके लिए वो क्या कहते हैं, इसके लिए आपको 3 चीजें कहनी पड़ेंगी। I'll be little faster also. पहली बात है, जब भी जिसके पास जाओ, जिससे भी मिलो, उसको कुछ दो। वो देने में मटेरियल गिफ्ट हो सकता है, मटेरियल गिफ्ट नहीं है तो आप उसको ब्लेसिंग्स दे सकते हो, उसको कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हो, उसको एक फ्लावर दे सकते हो, उसको एक स्माइल दे सकते हो। कुछ भी दीजिए, बट आपके पास देने का भाव होना चाहिए। ये तो प्रिंसिपल ये कहता है कि केवल ह्यूमन बींग्स के साथ नहीं, एनिमल्स के साथ भी आपका वही भाव होना चाहिए। एनिमल्स के साथ तो और करुणा भी होनी चाहिए। इवन ट्रीज, पौधों को देखें, देन ऑल्सो यू गिव ए स्माइल, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू कि उसमें भी जीवन है। और जैनिज्म तो सब में जीवन मानते ही है। जैन शास्त्रों में तो पहले से जीवन की चर्चा थी। अब साइंटिस्ट इस बात पे पहुंचे कि पेड़ पौधों में भी जीवन है, पत्थर में भी जीवन है, हर एक में जीवन है। तो जहां भी आपको जीवन दिखाई दे, कोई चीज निर्जीव है नहीं। तो सबको देख करके आपके मन से एक इग्निशन होना चाहिए। एक कम से कम एक लविंग अटेंशन तो आप दे सकते हैं। किसी पेड़ को देखें, किसी पौधे को देखें, किसी पत्थर को भी देखें, लविंग अटेंशन। और हमारे बुद्ध पुरुष कैसे हुए? महावीर जो है जब चलते थे, और या आज भी जो हमारे साधु संत चलते हैं, वो नीचे भूमि को देख के चलते हैं। एक तो उसमें किसी जीव को नुकसान ना हो, और जो वो सॉइल है, उस सॉइल के प्रति भी कृतज्ञता कि उस सॉइल ने, मदर अर्थ ने हमको अपने ऊपर पांव रखने का मौका दिया। तो कृतज्ञता का भाव, तो वो कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। वंस वी फिल आवर लाइफ विद ग्रेटिट्यूड, विद लव एंड कंपैशन, सो लाइफ में इतनी जागृति आ जाती है कि आपको जो है हर पल, हर क्षण लाइफ इज बबलिंग विद जॉय, विद ब्लिस। तो ये चीजें होने लगती हैं। तो एक तो ये है कि हमेशा जहां भी जाएंगे कॉम्प्लीमेंट देंगे, कोई मटेरियल गिफ्ट देंगे, स्माइल देंगे, कुछ भी देंगे, हम देने के भाव से जाएंगे। एंड वी विल गिव ब्लेसिंग्स। इसको अपने जीवन में पूरी तरीके से हमको लागू करना है। एंड वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, क्योंकि हम किसी को देते हैं तो हमको वहां से वो चीज नहीं मिलेगी। यूनिवर्स विल गिव इट बैक थ्रू सम अदर सोर्स। यदि आपने जीवन में दिया नहीं और आपने जीवन में केवल स्टोर करके रखा, तो ये स्थिति एक उसी तालाब की हो गई जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, और एक दिन वो पानी या तो सड़ जाएगा या पानी वो सूखे में सूख जाएगा, और आपने उस एबंडेंस का यूज नहीं किया। और एक नदी को देखिए, नदी जो है चलती रहती है, फ्लो में रहती है। नदी बहुत मुश्किल से सूखती है। जो भी नदी पहाड़ से निकलती हैं वो हमेशा चलती रहती हैं, थोड़ा कम होता है, ज्यादा होता है। सो लेट अवर वेल्थ, लेट अवर एबंडेंस फ्लो, बिकॉज फ्लो से ही एफ्लुएंस है। एफ्लुएंस जो टर्म ही क्रिएट हुआ है वो फ्लो से हुआ है। इफ आपकी वेल्थ जो है स्टेटिक हो गई, तो वो आपकी वेल्थ, वो उसमें एबंडेंस ही नहीं है। एबंडेंस तभी लगेगी। प्रचुरता का मतलब ये है, प्रचुरता का मतलब है कि आप उसके थ्रू यू आर एक्सचेंजिंग द एनर्जी, यू आर फीलिंग very happy in exchanging that energy. So this is a rule of giving, इसको हम कह सकते हैं देने का सिद्धांत। उसके बाद है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत ये है कि as you sow, so you reap। that is the common चीज हम जानते हैं। इसी से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जोड़ूंगा। तो कर्म के सिद्धांत में कर्म क्या है? कर्म 3 लेवल पे हम लोग कर्म कहते हैं, या 4। कर्म की डेफिनेशन में 4 चीजें आती हैं। एक तो जो मैं थॉट, जो मैं सोचता हूँ, विचार, वो भी कर्म है, क्योंकि उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी। तो अच्छा सोचता हूँ, बुरा सोचता हूँ, वो हो गया मनसा। और वाचा हो गया वचन से जो मैं बोलता हूँ, वो भी कर्म है। और जो मैं कर्म करता हूँ फिजिकल, वो भी कर्म है। और जो मैं किसी से कराता हूँ कर्म,
मैं अपने एम्प्लॉय से कराया, अपनी पत्नी से कराया, अपने पुत्र से कराया, तो उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। तो मुझको जो भी मैं कर्म करूंगा उस कर्म का मुझे परिणाम भोगना ही है। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया। बुद्धा ने भी इसलिए कहा कि कर्म का सिद्धांत अटल है, उससे आप बच नहीं सकते। जो आपने किया उसको आपको भुगतना होगा। तो हाउ डू वी नाउ डील विद अवर कर्मा? हमारे संचित कर्म है, हमारे प्रारब्ध कर्म है, और आज हम जहां पे भी खड़े हैं इस मुकाम पे, वो सम टोटल इफेक्ट ऑफ आवर एक्शंस इन द पास्ट है। उसके लिए बुद्ध पुरुष कहते हैं कि हमने अभी तक जो अपने जीवन में कर्म किए उसमें से काफी कर्म हमने रिएक्शंस के तौर पे किए, अनकॉन्शियस माइंड से किए। अब हम अपने कर्मों के प्रति जागृत हो जाएं। तो जागृत का मतलब ये है कि अब हम जो भी करें वो कॉन्शियसली करें। हमें हर एक पल, हर एक काम करते हुए कॉन्शियस चॉइस करनी है। एक क्षण में, हर एक क्षण में हमारे सामने जो भी संभावनाएं आती हैं उसमें इनफाइनाइट चॉइसेस हमारे सामने होती हैं उस चीज को डील करने की। लेकिन हम अपने कंडीशन माइंड से, रिफ्लेक्स एक्शन से हम सोचते भी नहीं, ऑटोमेटिकली वो काम वैसे ही हो जाता है। तो आज से यदि हम ये देखें, छोटे कर्मों को छोड़ दीजिए, खाने का है, पीने का है, थोड़ा चलने फिरने का है, वैसे तो एक कदम उठाना वो भी कर्म है, और उसमें भी आपको जागृति होनी चाहिए। यदि महावीर हैं, बुद्ध हैं, तो वो, मैं हाथ भी उठा रहा हूँ तो वो भी जागृति और फुल अटेंशन के साथ उठाना चाहिए। तो जो बड़े कर्म हैं या जो जिनका कुछ रेमिफिकेशन है, किसी ने मुझे गुस्से में कुछ कहा, अब उसका जो मैं ये आगे रिस्पॉन्स देना है वो मेरे सामने चॉइस है। मैं उसको शांत भी कर सकता हूँ, उससे अपोलॉजी भी मांग सकता हूँ, उसकी व्यथा के विषय में सोच सकता हूँ, या उसने मुझे गाली दिया या गुस्सा किया तो मुझे उसका वापसी वैसे ही देना है, वैसे ही दूंगा। तो मैं उस कार्मिक जो वो चेन है, कड़ी, उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मास्टर्स कहते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू पॉज, और उसका हम किस तरह का रेस्पॉन्स दें, किस तरह की चॉइस बनाएं, ये हमको सोचना है। और चॉइस बहुत सारी हमारे सामने होती हैं, बट उसमें से सब में अच्छी चॉइस एक ही होती है। वो चॉइस कैसे जाने? तो उन्होंने उसके दो मापदंड बताए। एक तो ये मापदंड बताया उस चॉइस का कि जिस चॉइस को इम्प्लीमेंट करने में आपको और आपके जो उससे अफेक्टेड पार्टी हैं सबको सुख पहुंचेगा, सबको अनुकूलता आएगी, वो चॉइस अच्छी है। यदि किसी ने मुझे गाली दी और मैंने वापसी में उसे गाली दे दी, तो उससे हो सकता है मेरा तो ईगो सेटिस्फाई हो जाए, हालांकि मुझको भी अच्छा ही लगेगा, बट वो आदमी को तो भी तो बुरा लगेगा और हमारा आपस में बैर बढ़ेगा। और इसमें मैं उसको कहूँ यार शांत हो जाओ, अच्छा बताओ आपके मन में क्या प्रॉब्लम है, आई सीक अपोलॉजी, उसके बाद आपको कितना अच्छा अनुभव होगा। तो ये उसमें कहते हैं कि यू सी द चॉइस विच यू आर गोइंग टू मेक, वेदर इट इज गोइंग to give comfort and make you happy and also those who are affected by this choice। एक तो ये सिद्धांत है। इसमें गांधी का भी सिद्धांत आता है कि आप जब भी कोई कर्म करते हो तो अपने को अपोजिट पार्टी के शूज में रख लो, उसकी स्थिति में रख लो। दूसरा ये है कि जब भी हम चॉइस बनाएं तो हमारा जो हार्ट रीजन होता है, यहाँ पे एक सेंसेशन आती है, उसको कभी आप सोचेंगे जब वो बड़ा डिसीजन होता है कभी, तब तो हमको लगता है, तो वो हार्ट में हमें एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट आती है कि ऐसा करेंगे तो हमें अच्छा लग रहा है। मान लो हम अभी कहें कि हम चीट करें किसी को, आपको लॉट ऑफ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट होगा, या किसी से झूठ बोलें, डिस्कम्फर्ट होगा। तो हमारा हार्ट जो है वो इमोशनल होता है और वो जो है आपको इंडिकेट देता है कि दिस इज नॉट कंफर्टेबल। सो यू गो बाय द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, हार्ट की वॉइस से जाइए, जो कंफर्ट लगे उन चॉइसेस में से उस चॉइस को चूज कीजिए, और उसको जो है आप, उससे आपको कंफर्ट मिलेगा, दैट विल बी द चॉइस, राइट चॉइस। तो ये तो हो गया, आज से हम अपना जो कर्म करें, कर्म जागृति से करें, कॉन्शियसली करें, और ताकि हम आगे के लिए उन कर्मों के ऐसे परिणाम ना आए प्रतिकूल, जिसकी वजह से हम फिर से विक्टिम बने या अपनी कड़ी, कर्म की कड़ी को आगे बढ़ाएं, जिनके साथ भी हमारा कुछ बैर भाव है, कुछ उलट पुलट हुई है। तो एक तो आगे से अपने कर्म हमें शुद्धता से, शुचिता से, पवित्रता से करने चाहिए, और जैन शासन तो ये कहते ही है। दूसरा, जो कर्म हो गए हैं उनका क्या होगा, तो उसके कर्मों के लिए कहा तो एक तो कर्म ये है कि जो भी हुआ
उसको भुगतना है तो हम लोग मूर्छा के साथ, मूर्छित अवस्था में उसको जो है भुगतते रहें। कैन आई टेक 15 मिनट्स मोर मिस्टर विराग? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Okay, sir. Yes, Because sir. No problem. it is going to take 15-20 minutes more, even if I Yes, sir. just Yes, sir. no issue. No issue, sir. No issue. Absolutely. So हम लोगों को एक तो जो हमने कर्म किए वो जो कर्मों का परिणाम अब आ रहा है, प्रतिकूल आ रहा है, तो एक तो हम मूर्छा में उसको भोगते रहे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया बुद्धा से, बुद्धा और महावीर का एक ही मतलब है कि उसको और क्या कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं उनके, एक है ट्रांसम्यूटेशन ऑफ कर्माज और एक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्माज। ट्रांसम्यूटिंग दी कर्माज ये है कि यदि मेरे साथ मान लीजिएगा कोई क्राइसिस हो गई, कोई मेरे साथ एक घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, मान लीजिएगा अभी एक एक्सीडेंट हो गया किसी व्यक्ति का, और उस एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया, घुटना टूट गया, तो एक तो ये मान के कि ये मेरे किसी पहले जन्म के, इस जन्म के किसी बुरे कर्म का परिणाम है, मैं उसको भोगता रहूं। दूसरा, मैं इसको चैलेंज दूं और मैं इसमें पूरे ह्यूमैनिटी की संवेदना को जोड़ दूं कि देखो इस तरह में मैं तो वेल्थी आदमी हूं, मैं इसको डील कर रहा हूं, हॉस्पिटल में हूं, क्या हम इस घुटना जो मेरा खराब हो गया, क्या हम कोई घुटने का सब्स्टिट्यूट ढूंढें, इस पर रिसर्च कराऊं और मैं पूरी युक्ति उस बात में लगाऊं कि हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमैनिटी एज ए होल और फॉर एटलीस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल एज ए होल। तो मेरी वो जो है चिंता तो खत्म हो जाएगी, मेरा रिसर्च शुरू हो जाएगा उस पर कि इस प्रॉब्लम को, जो मेरा ये एक्सपीरियंस है, इससे लेसन लेकर के मैं सभी लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की सोचूं। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन ऑफ कर्मा। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, किसी की आंखें चली गई मान लो, या किसी को कोई बीमारी हो गई, तो वो उस बीमारी के लिए कुछ हॉस्पिटल या डॉक्टर की व्यवस्था कर देंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं। कोई आदमी पढ़ नहीं पाया, उसने बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था कर दी। तो उस तरीके से आप जो है अपने कर्मों को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। मतलब जो कर्म से आपको क्राइसिस था, उस क्राइसिस के ओवरकम करने के लिए आप एक रिसर्च बन जाते हैं, एक लेबोरेटरी बन जाते हैं। तो आपकी जो दृष्टि थी या आपकी सारी की सारी एनर्जी उसको सहन करने में लगी हुई थी, उस प्रॉब्लम को, आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन ऑफ कर्मा। सो हम लोग जो बुरे कर्मों के परिणाम हैं, क्राइसिस है, हार्डशिप है, प्रतिकूल परिस्थितियां, उसमें ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्मा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्मा में ये कहा गया कि व्हेन यू सिट इन मेडिटेशन, और जब आप मेडिटेशन में थॉटलेस होते हैं, अपने चेतना से जुड़ते हैं, मेडिटेशन में हम अपनी चेतना से जुड़ जाते हैं, अपने स्रोत से जुड़ जाते हैं, तो जितने समय हम अपनी चेतना के साथ रहते हैं, दैट इज द टाइम ऑफ प्योर पीस। तो उस समय वो प्रतिकूल परिस्थिति भी हमको जो है अफेक्ट नहीं करती। तो वो एडवर्स कर्म भी चल रहा है परिणाम, तो उस टाइम पे वो ऐसा हो जाएगा। उन्होंने एक इसकी कंपैरिजन किया, एक गंदा कपड़ा है, उस कपड़े में इतना गंदा लगा हुआ है कि वो एक बार में नहीं जाएगा। एक बार आपने धोया, थोड़ा उसका स्टेन कम होगा, दोबारा धोया कुछ और कम होगा, तीसरी बार धोया। तो ऐसी जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं और आप अपना इनर पीस, इनर कनेक्ट इस्टेब्लिश करते हैं, तो धीमे धीमे वो कार्मिक इफेक्ट उसका कम हो जाता है। क्योंकि हमें फिजिकल लेवल पे जितना महसूस होता है, उससे ज्यादा हमारे माइंड में उसकी सफरिंग रहती है। दैट इज सफरिंग एट द मेंटल लेवल। एंड व्हेन वी गो इनटू मेडिटेशन, we reduce that suffering, we dilute that suffering, we dissolve it. So these are the two ways, transmutation of karma and transformation of karma. And henceforward, I must make a conscious choice of responding to karmas और बिल्डिंग न्यू कर्माज। जो भी मैं नए कर्म करूं वो जागृति के साथ करूं, और ऐसे कर्म करूं, यदि मैं व्यापार में हूं तो मैं केवल अपने ध्यान न रखूं, अपने क्लाइंट का भी ध्यान रखूं। यदि मैं प्रोफेशन में हूं, अपने क्लाइंट का भी ध्यान रखूं। तो उस तरीके से यदि समता की दृष्टि से मैं देखूं और मैं अपने को उसकी जगह रख लूं, मेरे क्लाइंट की जगह, मेरे कस्टमर की जगह, जिससे भी मैं अपना ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूं, या ऐसी जिस भी क्षेत्र में हूं, यदि मैं जो भी लोग उसमें रोल प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबका मैं हित रखूं, तो उससे मैं अच्छे कर्मों का निर्माण करूंगा। ये कर्म का सिद्धांत हो गया। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये है कि एवरी थॉट
एक फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। थॉट इज एन एनर्जी, एवरी थॉट इज एन एनर्जी, और इससे एक फ्रीक्वेंसी पैदा होती है और वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है और उसी फ्रीक्वेंसीज की वेव्स बहुत सारी आपके पास वापस आती हैं। तो यदि मैं कोई निगेटिव थॉट भेजता हूँ यूनिवर्स को, तो इट विल कम बैक टू मी विद अ लॉट ऑफ निगेटिविटीज। यदि मैं कहता हूँ मैं बीमार हूँ, तो और ज्यादा मुझे बीमारी का एहसास होगा। ऐसे यदि मैं पॉजिटिव थॉट कहता हूँ तो वो पॉजिटिविटी के साथ वापस आता है। सो एवरी थॉट इज एन एनर्जी, एवरी वर्ड इज एन एनर्जी। पुअर माउथ will create poor words and it will send poor signals. आप अपने बच्चे के लिए बुरा बुरा बोलने लगो, it will manifest. और ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे बहुत काबिल नहीं थे। एक मुझे कहानी याद आ रही है, नाम तो नहीं है, कि एक बच्चा वेस्टर्न कंट्री में, जर्मनी में शायद, स्कूल में भेजा उसकी मदर ने, वो पुअर थी मदर, और उस बच्चे को डिसलेक्सिया था उस टाइम पे डिसलेक्सिया की कोई के विषय में किसी को मालूम भी नहीं था। तो वो बच्चा सब उल्टा पुल्टा लिखता था और वो स्कूल में से उसके टीचर ने कहा कि ये तो इन बच्चों के साथ नहीं चलेगा, और उसने एक स्लिप भेजी और वो उस बच्चे ने उसने बैग में रखी और उसके मदर के पास वो बच्चा आता है। मदर उसको देखती है तो और वो टीचर कहता है बेटा आप कल से नहीं आना, और वो अपनी मदर से पूछता है क्या कारण है, मुझे क्यों नहीं मैं जा सकता स्कूल। तो उसकी मदर कहती है बेटा तुम बाकी सब बच्चों से ज्यादा उत्कृष्ट हो और टीचर का कहना है कि तुम उनके साथ पढ़ने लायक नहीं हो क्योंकि उनका लेवल आपसे नीचे है। और बार बार कूट कूट करके वो सकारात्मक दृष्टिकोण उस बच्चे में भरती है। अपने घर पे ही उसको पढ़ाती है वो, जबकि ज्यादा पढ़ी हुई नहीं है, रात और गरीब भी है, पढ़ाती रहती है और बाद में वो बच्चा बड़े होकर के कोई केमिस्ट या कुछ है और उसको शायद नोबेल प्राइज भी मिला। और उसके बाद उसकी मदर की डेथ हो गई। फिर जब डेथ के बाद उस बच्चे ने एक दिन कुछ संदूक खोला तो उसमें वो पर्ची मिली जो टीचर ने लिखी थी, एंड ही वाज फुल ऑफ टीयर्स कि उसकी मदर ने इतने समय तक उसको ये नहीं बताया और उसको ये एहसास नहीं कराया कि तुम्हारे अंदर डेफिशिएंसी है। तो ये होता है कि थॉट वेव्स हम भेजते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज नेवर send any negative vibration. Every thought you generate in your mind, I am depressed, I am stressful, I am having bad health, I am tired, all will go to the universe. They will create a frequency, and the frequency which you are creating, they will attract the like frequency and they will come back. And so is your thoughts for your children, for your family, everywhere. So now it has been proved by the research that you have to be positive and positive only, and you have to change your perspective also. पर्सपेक्टिव के बाद में ये भी होता है कि हमारा जो पूरा जीवन है, हमारा जो फोकस है निगेटिविटी पे होता है। हमारे पास 50 खुश होने के कारण हो, बट हमको जो भी एक ना खुश होने का कारण है वो हम ढूंढते हैं। ये हमारा एक जनरल पर्सपेक्टिव होता है। तो वो कहते हैं उसमें कि यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड, यू हैव टू काउंट ओनली ब्लेसिंग्स, यू हैव टू थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। एक भी नेगेटिव आपको चीज मन में धारण ही नहीं करनी है, उसकी तरफ देखना नहीं है। इसके लिए एक डॉट की एग्जांपल दी जाती है, ब्लैक डॉट की, कि एक दिन एक टीचर ने एक अपनी क्लास में कहा आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज तुम्हारा एग्जाम लेता हूं बच्चों से। और उसने एक पेपर दिया और उस पर एक ब्लैक डॉट बनाया और कहा कि अब इस पे जैसा भी आप काम करना चाहो करो। तो किसी ने उस ब्लैक डॉट के चारों तरफ एक घड़ी बना दी, किसी ने उस ब्लैक डॉट को आंख बना के चिड़िया बना दी। सारे पेपर्स उसने देखे और सारे पेपर्स में उसने देखा कि ब्लैक डॉट को ही, ब्लैक स्पॉट को ही केंद्रित करके बच्चों ने काम किया। तो ये हमारी एटीट्यूड है कि इतना बड़ा वो पेपर था, उसमें सारा व्हाइट स्पेस था, उसमें हमने कुछ क्रिएट नहीं किया, हमारी निगाह केवल उस ब्लैक स्पॉट पे गई। तो राइट फ्रॉम द टाइम वी बोर्न ऑन दिस प्लेनेट, जहाँ जन्म लेते हैं, तब से केवल हमारा नजरिया उस काले स्पॉट को देखने का, डेफिशिएंसीज को देखने का, दोष को देखने का होता है। यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें बेटर साइड ऑफ लाइफ देखना है, दोष दृष्टि से गुण दृष्टि, और गुण दृष्टि से भी ऊपर मंगल दृष्टि। सब कुछ मंगलमय है, जो भी कुछ हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से तो हो रहा है, वो सब मंगल है और उसमें सबका हमारा मंगल है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें बहुत सारी चीजें कही जा सकती थी, बट सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो नाउ आई टेक द लास्ट प्रिंसिपल। लास्ट प्रिंसिपल क्या है
that is serving the entire community or entire society through pursuit of your passions. एक ये चीज होती है जिससे कि आपको मीनिंग मिलती है अपने लाइफ में कि हर एक व्यक्ति जो भी इस प्लेनेट पे आया उसका एक यूनिक टैलेंट है या वो किसी चीज को यूनिकली एक्सप्रेस करना चाहता है। दो बातें हैं, कोई भी दो व्यक्ति में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई यूनिक टैलेंट ना हो, ये स्क्रिप्चर्स कहते हैं, या उसको कहने का तरीका उसका इतना अद्भुत ना हो। तो हम लोग जो है आधे लोगों को हमने बिलिटिल कर दिया है अपने जीवन में और उन लोगों ने भी इंफीरियोरिटी से। तो हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति एक्सप्लोर करे व्हाट इज हिज हिडन टैलेंट, व्हाट इज हिज रियल पैशन, और उस रियल पैशन का वो परस्यूट करे लाइफ में। हम आए तो जीवन में इसलिए हैं कि केवल हम उस पैशन को परस्यू करें, बट सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे हमको धन कमाना है, जहाँ हमें इंजीनियर बनना है, अधिकारी बनना है, ये करना है, वो करना है, हमने धन को ज्यादा महत्व दे दिया। तो इसके लिए ये बताया बुद्ध पुरुषों ने और जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, ये कैसे पता चलेगा व्हाट इज योर हिडन टैलेंट। तो उन्होंने कहा कि उसका आपको ऐसे मालूम पड़ेगा कि यदि आप सोच लें कि आपको जो भी चाहिए था जीवन में वो सब मिल गया, एबंडेंस मिल गई, सब कुछ मिल गया, अब आपको क्या करना है, आंख मीच के बैठिए। उस टाइम पे यदि आपको लगे मुझे ये करना है, मुझे टीचिंग करनी है, मुझको लर्निंग करनी है, या मुझको कुछ ट्रेवल करना है, तो जो भी आप उस समय में जब आप पूरी तरह फुलफिल्ड हैं, ऑल योर एजेंडाज आर फुलफिल्ड बाय नेचर, तब आप जो काम कह रहे हैं दैट इज योर अर्ज, दैट इज योर हिडन टैलेंट और दैट इज योर पैशन। तो आप उस पैशन को करें, नेचर ये चाहती है, और उस पैशन से बहुत अच्छा कार्य करेंगे और उस पैशन से आप सोसाइटी को, समाज को, ह्यूमैनिटी को, सारे जगत को, उससे आप सर्व करेंगे बड़े अद्भुत तरीके से। आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होगा, आपके जीवन को अर्थ मिलेगा और उसके बदले में आपको रिवार्ड भी मिलेगा। वो रिवार्ड होगा एक तो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट में, और आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि नेचर जब देती है, नेचर आपको तोल के नहीं देती जैसे हम तोलते हैं कि हमने ये काम किया इसका इतना पैसा। नेचर खुद ब खुद ही जो कॉस्मिक माइंड है वो आपको आपकी पात्रता के हिसाब से देता रहता है। ये ऐसे ही हुआ कि एक टॉय बच्चे को, इसको ऐसे कहते हैं कि बच्चा है, बच्चे का फादर जब बाहर जा रहा है तो बच्चे ने कहा, 4 साल के बच्चे ने, मुझे एक टॉय लाके दे देना। अब टॉय उसने बस ऐसे ही बोल दिया टॉय लाके देना। अब उसका फादर अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो टॉय लाएगा। वो टॉय 10,000 का भी हो सकता है, 2,000 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, उसका जैसा स्तर है, जैसी सोच है। तो यहाँ पे जब हम अपनी इंटेंशन डालते हैं उसमें, कॉस्मोस में, बाई कनेक्टिंग टू अवर सोर्स, तो केवल हम वो इच्छा डालते हैं, मुझे एक अच्छा मकान चाहिए, मुझे नेचर के किनारे एक अच्छा मकान चाहिए, और वो मैनिफेस्ट हो जाता है, उसकी तरफ व्यवस्थाएं बन जाती हैं, और वो व्यवस्थाएं इतनी अद्भुत होती हैं। मैं अपने जीवन में बहुत बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा। जैसे मेरे जीवन में ये था, मतलब एक आइडिया रहता था कि आई मस्ट टेक टू द टीचिंग और आई शुड हैव बिकम एन एडवोकेट। दैट वाज माय पैशन एंड आई जॉइंड my career as an advocate. Then I got selected into IRS, and now when my inning is over, I am working as an advocate with a lot of sense of fulfillment, and I am taking lot of webinars on spirituality, which my masters used to say, you leave the job and you become a teacher. So you never know, ये जो चीजें हमारे मन में चलती रहती हैं, जो हमारे टैलेंट्स होते हैं, उसके प्रति यदि हम थोड़े सजग हों तो वो आएंगे हमारे जीवन में। ये हमारा टैलेंट है। तो ये सूत्र कहते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम टू अदर वर्क, डिवोट एटलीस्ट सम टाइम टू परस्यूट ऑफ दोज टैलेंट्स, दोज पैशंस, क्योंकि वो काम आप जो कर सकते हैं वो दूसरा आदमी उतने अच्छे से नहीं कर सकता। तो आप पूरी यूनिवर्स को डिप्राइव कर रहे हैं वो काम ना करके, क्योंकि आपको थोड़ा अर्थ कमाना है, थोड़ा धन कमाना है, सोना चांदी जोड़ना है, लेकिन आपने इस सृष्टि ने जिस वजह से आपको क्रिएट किया उससे उसको डिप्राइव कर दिया। सो यू हैव नो राइट। सो इफ यू वांट मीनिंग इन योर लाइफ, सो यू मस्ट डू दैट, यू मस्ट परस्यू योर परस्यूट्स एंड सर्व द सोसाइटी, सर्व दिस नेशन, सर्व द प्लेनेट अर्थ, देन इट विल बी अ बेटर अर्थ टू लिव। और ये जो सूत्र मैंने बोले बहुत संक्षिप्त में बोले, समय भी कम था, अभी भी काफी समय हो गया,
connecting to your source, knowing thyself, that is one. Then law of giving or rule of giving, second हो गया. Then कर्म का सिद्धांत, as you sow so you reap, and how to conduct, how to deal with the karmic effect by transmuting and transcending the karma, transforming the karmas. And then law of attraction, or then finally pursuit of your passions or hidden talents for serving the humanity. जो अट्रैक्शन का लॉ है, अट्रैक्शन के लॉ में तो इतना ज्यादा कुछ है, कई सारी कहानियां थी which I could have shared, but because of the lack of time, already it is going to be 3:20 and I have another webinar at 4 o'clock. So I would like to conclude here. We can take up these sessions in detail, these topics sometime else. Thank you so much. Fantastic, sir. बहुत बहुत बढ़िया, sir. Fantastic, sir. May I now request Dipti to please come. You're right. I think Dipti's some technology issues there with her. One question is there, sir. Sir, we are positive, but others are negative. So how to deal with that? Like one question is, I am positive, but my brother is negative attitude for certain things. So how to deal with that? In fact, that is the technique of visualization. That since जो भी हमारा thought process है वो हमारी मान्यता पे टिका हुआ है. हमने मान लिया है कि मेरा ब्रदर निगेटिव है और मेरा ब्रदर मान रहा है कि मैं निगेटिव हूँ. Always it happens. If you just see him, तो आपका ब्रदर ये कहेगा कि वो तो पॉजिटिव है बट ये निगेटिव है. तो ये हमारी मान्यता है. तो उसमें हमें विजुअलाइजेशन करना है. हमको विजुअलाइजेशन करें, और मैंने अपने लाइफ में खुद ही बहुत बार विजुअलाइज किया और जो मैं चाहता था वो हो गया. सो ट्राई टू विजुअलाइज एज इफ कि मेरा ब्रदर से बड़ा मैत्री भाव चल रहा है और विजुअलाइज उसके थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है. एंड लेट मी सेंड द एनर्जी ऑफ लव. प्रतिक्रमण में भी आप वो काम करते हैं जैन सूत्रों में. जो हमारी ये मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं और बिलीफ सिस्टम से ही हम लोग ऐसी प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं. सो डोंट थिंक कि जो आपकी मान्यता है, जो आप सोच रहे हैं वो सही है, वो सही नहीं है. यदि आपका विजुअलाइजेशन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग हो एंड यू थिंक, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 3 चीजें हैं. यू आस्क, आप ये सोचो कि आपके ब्रदर का भाव बदल रहा है, पहले ये सोचो. फिर यू बिलीव कि आज से मेरे ब्रदर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. यू बिलीव इट एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी अभी से कि आज से उसका ब्रदर का आपके स्वभाव बदल गया, ऐसा मान लीजिए. और उसके बाद यू स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स, एंड यू रिफ्यूज टू डिसबिलीव दिस फैक्ट. एंड आफ्टर 10-15 days you will find your brother has changed, the people who have done the experiment. But first you have to believe from inner core कि ऐसा वो चेंज हो गया, वो चेंज हो जाएगा, उसका रूपांतरण हो जाएगा. उसको विजुअलाइज करें कि now brother is rethinking, brother is sending energy of love, you send energy of forgiveness, apology. उस पे आपको काम करना पड़ेगा. सुबह को उठो जब माइंड में साइलेंस हो तब उसको एनर्जी ऑफ लव भेजो. बीच में जब मेडिटेशन में बैठो तब एनर्जी ऑफ लव बैठो भेजो. और ये इसको दिमाग से निकाल दो कि वो निगेटिव है. You feel he has become positive, he is positive now, and your problem will get resolved. Within 15 days or 1 month he will change, definitely, for sure. Thank you, sir. One question from Ronak Jain. How to control anger and ego? ऐसा है कि जो एंगर है, एंगर का तो लोगों ने ये सिद्धांत बताया कि एंगर जब भी आए तो उसको पॉज कीजिए आप. यू डोंट एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू टेक 2 or 3 डीप ब्रेथ्स. जैसे एंगर आए और कुछ भी रिएक्ट करने से पहले 2 या 3 बार आप डीप ब्रेथ ले लें, थोड़ा पानी भी पी लें. जैसे एक आधा मिनट का या 1 मिनट का टाइम निकल जाएगा, योर एंगर विल सबसाइड और आप जो है फिर से अवेकेंड हो जाएंगे, जागृति में आ जाएंगे, क्योंकि वो एक तरह की मूर्छा है उसमें. और ईगो के लिए तो आपको थोड़ा सा स्क्रिप्चर्स को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ईगो से सब में ज्यादा ईगो सेंट्रिक जो भी जीवन जीता है वो उसका बिल्कुल शैलो होता है, होलो होता है. उसमें कभी भी जीवन में जॉय मिल ही नहीं सकता ईगो से, क्योंकि ईगो में हमेशा चीजें वस्तु परक जीवन होता है और वस्तु में उतार चढ़ाव आता रहता है.
तो ईगो तो ठीक है अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए, बट जितने हम अपने जीवन में विनम्रता ला सकें तो उसके लिए मेडिटेशन एंड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, इम्बाइबिंग द ह्यूमिलिटी। यदि हम लोग केवल वस्तुपरक जीवन में जिएंगे, जैन स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ना है, थोड़ी सी संत वाणी को, मॉर्निंग में अच्छे थॉट्स, डिवाइन थॉट्स करें, मेडिटेशन करें, so it will bring a lot of transformation and your negativities will come down. Ego itself is a negative thing na, it sends a wrong signal. It is a sense of separation, that you are separate from other human beings, you are separate from the existence, jabki you are part of the existence. I could have told so many things about this, but the time is also not adequate. It will take a lot of time to explain everything. Thank you. Sir, last question we have. How do we align with and apply this principle in our routine life? Like, since these concepts are forgotten and when we are faced with daily life issues, so how to deal with this? All these principles they are talking, all these principles which I have shared. Yes, sir. Yes. ऐसा है कि जैसा कहा वो परसेप्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। दृष्टि मैंने बताया ना, आप जो अपना अभाव कह रहे हैं, जीवन अभावों का है, तो आप अपने जीवन में अभाव देख रहे हैं, आप अपने जीवन में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, समस्याएं देख रहे हैं। यदि आप अभावों की जगह भाव देखें, उसको सेंस ऑफ कंपैरिजन दें, तो किसके जीवन में अभाव नहीं है? सबके जीवन में अभाव है। तो जो पॉजिटिव चीजें हैं उस पर हमें दृष्टि को परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग पॉजिटिविटी में जाते हैं, यदि मैं अपने से अंबानी के सामने अपने को रखूं तो मैं अपने को कंगाल पाऊंगा, बट क्या मैं मुझ पे तो आई फील आई एम फुल ऑफ मनी, आई एम हैविंग एबंडेंस इन लाइफ, मुझको लगता है मुझसे ज्यादा किसी पे नहीं है। तो इनफैक्ट सृष्टि में आपका ये फीलिंग है, आपकी दृष्टि है, दृष्टि पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप कितनी भी मजबूत दृष्टि अपने लिए रख सकते हैं, जबकि आपके अंदर बहुत डेफिशिएंसी हो, बट यू कैन हैव योर मोरल वेरी हाई। तो आई वुड से कि कॉम्प्लेक्स जो हमने पाला हुआ है इंफीरियोरिटी का या डेफिशिएंसीज का, उसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम है। हमको अपने माइंड का सॉफ्टवेयर जो मैंने बताया था, एक्सेप्टेंस है, नॉन जजमेंटल है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, ट्राई टू ओवर स्ट्रेच लाइक ए ईगल, एंड व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम ट्राई टू डील विद इट, कि मैं तो, और इनर सोर्स से कनेक्ट करें। मेडिटेशन में यदि आते हैं तो आपको बहुत चीजों के आंसर मिलते हैं, तो यू कैन बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। it requires only a strong will and proper perspective, proper दृष्टि, वही चाहिए उसके लिए। Thank you so much, sir. Sir, now there is no question, only few comments. Thank you, session is very good. Example and stories are too good from Manoj ji. Excellent guidance from Vanna Dodia madam. So there is a wonderful session, sir. So now would like to request Mahavir ji for formal vote of thanks for our today's session. Punit bhai would like to speak. Punit bhai. It was an excellent, really insightful session, and the small examples that you gave is really wonderful. And would request Mahavir bhai, as sir has also another back-to-back session. Sir is a very busy personality. We are really fortunate for you to be here, sir, along with us. And immediately, since the session is coming to end, there is a lot of requests coming up again and again to Virag bhai and on this session, that when are we having it next? Thank you. We can take any time else time, then we can discuss these sutras in very great detail. One sutra needs at least 1 hour to deal with. No? Yes, thank you, sir. Thank you. Over to you, Mahavir ji. थैंक यू विराग भाई। गुरुतुल्य महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सबका वंदन, अभिनंदन और साधुवाद। टुडे स्पीकर एससी जैन सर, प्रफुल्ल छाजेड़ सर, कोशर सर, कोपाडिया सर, बर्थडे बॉय बापना सर, मुकेश भाई, पीयूष भाई, विराग भाई और सभी पार्टिसिपेंट्स, सबको थैंक यू वेरी मच। जैसे एससी जैन सर ने कहा कि गुरु पूर्णिमा आत्मा में विराजमान चेतन स्वरूप जो गुरु तत्व है उसको वंदन करने का त्योहार है। गुरु कृपा आप सब पर खूब बरसे और जीवन में कर्म के बंधनों से मुक्त होकर आप केवल ज्ञान को प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। अंधकार से प्रकाश की इस यात्रा में हम सभी एक सहयात्री हैं। सीए प्रफुल्ल छाजेड़ सर
Thank you very much for your short but thoughtful address. For last so many years, you are a source of inspiration and guidance for all the CAs, and particularly Jain Chartered Accountants. ऐसे जैन सर ने सक्सेसफुल लाइफ क्या है और लाइफ में सक्सेस कैसे प्राप्त करने के लिए बहुत सरल शब्दों में बहुत ही अच्छे जो सूत्र बताए हैं, वो हमारे लिए बहुत ही दूर तक हमें मदद करेंगे. You know your nature, observe silence and do meditation, be in communication with nature, acceptance, accept the present moment, be non-judgmental, no complaint, no expectation, and we get what is due. Give response but no reaction, concentrate on positivity, rule of giving, try to give what you want to get. बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने लॉ ऑफ कर्मा जो है संचित और प्रारब्ध कर्म के प्रति जागृति, काम करते वक्त दिल की आवाज सुनने जैसा जो बात उन्होंने बताई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नो नेगेटिव थॉट्स और वाइब्रेशंस, एक प्योर पैशन के साथ सर्विस करना और कनेक्ट विद द नेचर एंड योर ओन कोर सोर्स. एससी जैन सर का 1 घंटा सुनना 10 सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने के समान है, ऐसा मुझे लगता है. और इतने वर्षों का उनका जो ज्ञान अर्जन है, अनुभव है और अनुभूति है, इसका निचोड़ उन्होंने बहुत ही थोड़े शब्दों में बहुत कम समय में हमारे सामने रखा है. सज्जन संगति का एक विशुद्ध अनुभव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. बहुत ही अच्छे से समराइज किया महावीर जी ने पूरे सेशन को. प्रदीप सर आप कुछ बोलेंगे सर? प्रदीप कापड़िया सर, प्रेसिडेंट सर. बस क्या बताना है, हम तो मंत्र मुग्ध हो गए एचसी जैन साहब को सुनने के बाद. द वे ही हैज रियली एक्सप्लेन्ड, आई थिंक वी आल्सो हैव, after Gurudev, we have now HC Jain Sahab who can now always guide us and take us into spiritual life basically. And Prafula ji, as we are aware that he has always been a guiding force and a motivator. He had always boosted, and whenever we have any problems or any other queries, Prafula ji has always been there for us. And now for spiritualism also, I think now we will also have to go to him. Education we used to go, but now for spiritualistic things also, we were not aware that Prafula ji, you have so much knowledge. You said Jainism का इतना मालूम नहीं है, तो अगर इतने में आपको इतना मालूम है, तो अगर थोड़ा ज्यादा होता तो क्या हो जाता था. So I think both of them have really taken us into that. I think we call it as a ride, spiritual ride, and if we can even implement, I think even 10 to 20% of it, we will have really a peaceful life, and we will not be struggling and not running after what we call it as success, but success will automatically come when we follow. And what Prafula ji said, if we follow Jainism, I think Jainism is the base of it and the root of all these things. It has Mahavir Swami and all that have taught us all this. If we really go through our Granth, I think that will give us that immense knowledge about it. So thank you very much to Jain Saab and Prafula ji for really guiding us. Thank you very much. Thank you so much all. Thank you all. So we are logging off with this. Thank you all the attendees for joining in this Sunday afternoon. Thank you all. Thank you. Thank you, Prabhu sir. Thank you so much.